Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, welcome once again to your GK class. I, Achal Singh, welcoming you all once again to your GK class. So students, in our previous session, we were doing unit number 8 as all of you are aware of it. And in today's session, I am going to start again with one more topic from the same unit number 8, that is languages worldwide. Okay, so that is given at page number 78. So class, kindly open your books at page number 78, that is languages worldwide. So I am just writing the topic on the board, that is languages worldwide. Okay, that is the topic that is given here, given at page number 78. Okay, languages worldwide. So this is the topic that I am going to start in today's session. Okay, so what is the meaning of the topic that is languages worldwide? तो ये लैंग्वेजेस वर्ल्ड जो टॉपिक है इसका मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? So the meaning of this topic is that there are, as you know, that there are different languages that are being spoken around the world. तो आपको पता है दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, अलग अलग रिलीजन्स, अलग अलग कास्ट, अलग अलग कल्चर के जो लोग हैं, दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस. ओके, सो हमारी जो इवन इन अवर ओन कंट्री, हमारी खुद की कंट्री इंडिया में भी बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं दैट इज बीइंग स्पोकन बाय द पीपल दोज हु बिलोंग टू द डिफरेंट रिलीजन. ओके, सो इन दिस topic we are going to talk about the various different languages that are being spoken all around the world. Okay, so जो कि पूरी अलग अलग दुनिया में जो अलग अलग लैंग्वेजेस हैं जो बोली जाती हैं. ओके, सो हियर आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज लैंग्वेजेस वर्ल्ड वाइड. सो इन दिस there are certain languages जो कि अलग अलग कंट्रीज में बोली जाती हैं by the people of the different religion, different caste, different culture. Okay, so first of all I will start with the tidbit that is given in your book. The first one is there are over 583 different languages and dialects spoken in Indonesia alone, including English and Dutch. ओके, तो कहते हैं इंडोनेशिया में, सिर्फ इंडोनेशिया, हेयर आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडोनेशिया ओनली इन इंडोनेशिया देयर आर नियर अबाउट 583 लैंग्वेजेस दैट इज बीइंग स्पोकन. तो 583 लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो कि सिर्फ इंडोनेशिया में ही बोली जाती हैं. तो सोचिए उस इंडोनेशिया में ही देयर आर डिफरेंट 583 लैंग्वेजेस दैट आर बीइंग स्पोकन. ओके, जिसके अंदर दे इंक्लूडिंग द डच लैंग्वेज एंड द इंग्लिश. So these two languages are also being included in that. Okay, तो इंडोनेशिया में ही सिर्फ नियर अबाउट 583 languages that are being spoken. Okay, including English and Dutch. Okay, these two are all, ये भी दो languages के ही name हैं. Next is in the television series Star Trek, Klingon is the language of the aliens. Okay. ओके, सो देखिए यहाँ पे एक टेलीविजन सीरीज़ की बात हो रही है. द नेम ऑफ द टेलीविजन सीरीज इज स्टार ट्रेक. सो स्टार ट्रेक इज द नेम ऑफ अ टेलीविजन सीरीज. तो एक टेलीविजन पे कहते हैं ना एक प्रसारित होने वाला एक धारावाहिक है जिसकी हम बात कर रहे हैं. सो दिस इज द नेम आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट इज द टेलीविजन सीरीज एंड द नेम ऑफ द टेलीविजन सीरीज इज स्टार ट्रेक. Okay, so this is the name of the television series. Okay, and the languages that okay, वहाँ उस सीरीज में क्या है कि मतलब there were are aliens and all these are things, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो aliens बोलते हैं. So now here, so the question is that Klingon, what is the Klingon? Klingon क्या है? So Klingon is the language that is being spoken by the aliens in the Star Trek टीवी सीरीज़. तो टीवी सीरीज़ जो स्टार ट्रेक है वहाँ पे जो क्लिंगन एक लैंग्वेज है जो कि बोली जाती है. स्टार ट्रेक जो टीवी सीरीज़ में उसमें जो एलियंस थे, ओके, जो स्टार ट्रेक टीवी सीरीज़ थी उसमें जो एलियंस थे, दैट सीरीज जो सीरीज़ थी दैट वाज अबाउट द एलियंस. उसमें बहुत सारे एलियंस थे. तो वो जो एक लैंग्वेज बोलते थे उस लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, दैट इज़ क्लिंगन. The language spoken by the aliens in the Star Trek movies in the TV series was Klingon. Okay. Third is not all languages are spoken in sign language. Hand movements stand for words
लेटर्स एंड सेंटेंसेस। ओके, सो देखिए हर ज़रूरी नहीं है हम कि हर जो लैंग्वेज है वो बोल के ही बोली जाए। सम आर द साइन लैंग्वेजेस। ओके, सो द पीपल हु आर डम, जो कि बोल नहीं सकते, जिनको मूक हम बोलते हैं, जो बोल नहीं सकते, वो क्या करते हैं, दे यूज़ साइन लैंग्वेजेस। तो दे यूज़ मूवमेंट्स फ्रॉम देयर हैंड्स, दे यूज़ द फॉर समटाइम्स दे यूज़ द स्टैंड वर्ड्स फॉर देयर, मतलब हैंड के मूवमेंट्स करके दे स्टार्ट, मतलब वो लोगों से कॉन्वर्सेट करते हैं। और जिनको वो अंडरस्टैंड करना होती है लैंग्वेज, उनको भी साइन लैंग्वेज आती है। ओके, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड। ओके, सो साइन लैंग्वेजेस, देखिए साइन लैंग्वेज इज ऑल्सो अ लैंग्वेज, बट इट इज़ नॉट स्पोकन विद द माउथ, बट वो मुंह से नहीं बोली जाती। ओके, तो साइन लैंग्वेज इज ऑल्सो अ लैंग्वेज, बट वो मुंह से नहीं बोली जाती। ओके, सो इसमें क्या होता है, हैंड मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है, लेटर्स से, और वर्ड्स और सेंटेंसेस हैं जो हैंड मूवमेंट से बोले जाते हैं। आपने बहुत सारे देखिए, जो आजकल आप देखिए बहुत सारी जो टीवी पे एड्स आती हैं रिसेंटली, आई एम नॉट गेटिंग द नेम ऑफ पॉलिसी, आई थिंक सा पॉलिसी बाजार की एक ऐड आती है, उसमें भी दे यूज़ द साइन लैंग्वेज कि वो अपने फ्रेंड से बोलता है, तो वो पूरी जो उसकी डायलॉग डिलीवरी करता है कि वो क्या बोलना चाहता है, तो वो साइन लैंग्वेज से बोलता है, और जो उसका फ्रेंड है वो उसकी साइन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करके वो पूरी जो डायलॉग है जो वो बोलता है उसको जो बाकी लोगों तक पहुंचाता है। सो दिस इज़ अ साइन लैंग्वेज। सो दैट मीन्स एवरी, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर लैंग्वेज बोली ही जाए, देयर आर सम साइन लैंग्वेजेस एज वेल। ओके, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, answer the following questions. Okay, so this is the most widely spoken language in the world with 1 billion speakers. It has 40,000 characters and 9 tones. Which language is this? Okay, ओके, सो देखिए हम बात करें यहाँ पे, यहाँ दुनिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। ओके, इट इज़ द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। द लैंग्वेज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, दिस इज़ द मोस्ट वाइडली स्पोकन, सबसे ज़्यादा ये लैंग्वेज बोली जाती है वर्ल्ड में। ओके, विथ 1 बिलियन स्पीकर्स, तो इसको बोलने वालों की जो गिनती है दैट इज़ 1 बिलियन। देयर आर 1 बिलियन पीपल हु स्पोक दिस लैंग्वेज। इट हैज़ 40,000 कैरेक्टर्स एंड 9 टोन्स। तो इस लैंग्वेज को बोलने के लिए 40,000 कैरेक्टर्स हैं। ओके, एंड देयर आर 9 टोन्स टू स्पीक दैट लैंग्वेज। विच लैंग्वेज इज दिस? तो ये कौन सी लैंग्वेज की बात हो रही है? सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द लैंग्वेज दैट इज मैंडारिन linguistics. Okay, so the name of the language is, it is little bit complicated beta, the name is little bit complicated, but this I will just try to pronunciate it, that is Mandarin linguistics. Okay, so this is a language that is being spoken worldwide. Okay, तो इसको बोलने वालों की जो तादाद है that is near about 1 billion. 1 बिलियन लोग हैं जो ये लैंग्वेज बोलते हैं, और इसमें नियर अबाउट 40,000 कैरेक्टर्स हैं एंड 9 टोन्स आर देयर। ओके, तो इसको बोलने वाले की जो गिनती है वो है 1 बिलियन। 1 अरब पीपल हैं, जो नॉट अरेबियन पीपल के अरब नहीं, तो गिनती वाले जो अरब, काउंटिंग वाले अरेबियन। ओके, 1 बिलियन पीपल दे स्पीक दिस लैंग्वेज एंड there are 40,000 characters in this language and 9 tones, and this language is spoken, this language is being spoken in 9 different tones. तो 9 different tones में जो ये language है ये बोली जाती है. Okay, so that is Mandarin linguistics. That is Mandarin linguistics. Okay, so the language I am talking about, that is Mandarin linguistics. LINGUISTICS. Mandarin linguistics. Mandarin linguistics is the language that is being spoken by the 1 billion people around the world, and there are 40,000 characters, and this language is being spoken in 9 different tones. Okay, next one. What is the scientific study of language called? Okay, जब हम language की study करते हैं scientifically, तो what do we call that? We call that okay. So here, sorry, I had just written the one letter. So here it will be only Mandarin, not linguistics. So here we will write only Mandarin. Okay, so that is the name of the language, that is Mandarin, that is being spoken around the world,
by the 1 billion people and are around 40,000 characters, and this language is being spoken in 9 different tones. So if you want to write linguistic, you can, or you can just simply write it as Mandarin. That is okay. Next, what is the scientific study of language called? ओके, सो जो हम साइंटिफिक स्टडी है किसी भी लैंग्वेज की, उसको क्या बोलते हैं? ओके, सो इफ समवन इज स्टडिंग लैंग्वेज साइंटिफिकली, सो व्हाट वी कॉल इट? सो दैट इज अ लिंग्विस्टिक. सो ही इज डूइंग द स्टडी ऑफ लिंग्विस्टिक्स. ओके, so the scientific study of language is called linguistic. Okay, so if someone is studying the language scientifically, that means he is studying linguistics. So the answer is linguistic. Linguistics, linguistics. So the scientific study of language is called linguistics. Scientific study of language is called linguistics. Okay. Next one, name any two languages that were spoken in ancient times but are no longer commonly spoken. ऐसी two languages के बारे में बताइए जो कि पहले ज़्यादातर जो लोग हैं वो बोलते थे, लेकिन आजकल दैट इज़ नॉट बीइंग कॉमनली स्पोकन बाय द पीपल. सो व्हाट आर दोज टू लैंग्वेजेस? दैट इज़ लैटिन एंड संस्कृत. जो संस्कृत और जो लैटिन लैंग्वेज, दैट आर द मोस्ट एंशियंट लैंग्वेजेस. आज तक की सबसे पुरानी लैंग्वेजेस इज द संस्कृत एंड द लैटिन. सो दीज आर द मोस्ट एंशियंट लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड. ओके, तो ये दोनों बोली कहाँ जाती हैं, कहाँ जाती थी? पहले ही देखिए जो लोग थे, दिस यूज टू स्पीक दिस लैटिन लैंग्वेज एंड संस्कृत लैंग्वेज. इफ़ यू रिमेंबर, तो मोस्टली हम जब हम इंग्लिश में कोई भी पोइम कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं या कोई भी मतलब ईवीएस में पढ़ते हैं, तो हम कहते हैं ना उसमें लैटिन, इन लैटिन इट वॉज नोन एज दिस. तो मोस्टली जो वर्ड्स होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं कि लैटिन लैंग्वेज में इसको ये कहा जाता है, बिकॉज एट दैट टाइम द लैटिन वॉज द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज, बट नाउ इट इज़ नो लॉन्गर एग्जिस्ट. अब वो इतनी ज़्यादा नहीं बोली जाती. ओके, सो लैटिन इज़ द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज अर्लियर एंड द संस्कृत एज वेल. सो नाउ इट इज़ नॉट सो कॉमन स्पोकन लैंग्वेज. Okay, so the most common spoken language by the people are Latin and Sanskrit. So Sanskrit and the Latin are the most common languages that are being spoken by the people. Okay, so the answer is Latin and Sanskrit. So third one is Latin, Latin, Latin and Sanskrit. Latin and Sanskrit is the most widely spoken languages around the world. ओके, सो देखिए पहले ही जो आमतौर पे जो लोग हैं ये लैंग्वेज यूज़ करते थे, बट नाउ इट इज़ नॉट सो कॉमन इन द पीपल. ओके, अभी कॉमनली नहीं है, बट अर्लियर इट वॉज द मोस्ट कॉमन लैंग्वेजेस दैट वर बीइंग स्पोकन बाय द पीपल अराउंड द वर्ल्ड. संस्कृत एंड द लैंग्वेज. द क्वेश्चन, इफ द क्वेश्चन कम्स की विच इज़ द मोस्ट, सपोज क्वेश्चन आ गया कि नेम एनी टू लैंग्वेजेस, ओके, नेम टू एनी टू मोस्ट स्पोकन लैंग्वेजेस ऑफ एंशिएंट टाइम. That will be Latin and Sanskrit only. Clear? Next one is the fourth one. Name two countries that do not have any official languages. ऐसी दो कंट्रीज के नाम बताइए जिनकी कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है. सो लाइक हिंदी इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ आवर कंट्री. जो हमारी इंडिया की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है? हिंदी. और संस्कृत आप कह सकते हैं, संस्कृत इज नॉट द ऑफिशियल लैंग्वेज. तो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ आवर कंट्री इज हिंदी. तो ऐसी हर कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज होती है. कोरिया की कोरियन है. ओके, जो पाकिस्तान है वहाँ की उर्दू इज़ अ कॉमन लैंग्वेज है. ओके, सो अलग अलग कंट्रीज़ की कुछ ऑफिशियल लैंग्वेजेस होती हैं. सो नाउ यू हैव टू टेल द टू ऑफिशियल लैंग्वेजेस, टू नेम ऑफ द टू कंट्रीज दोज हु डोंट हैव एनी ऑफिशियल लैंग्वेज. सो दैट इज ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए. Australia and USA are the name of the two countries, those who do not have any official language. Australia and USA are the name of the two countries, those who do not have any official language. Okay? So the two countries, those who do not have any official language, that is Australia and USA. Australia and USA. Australia and USA is the name of the country, are the two countries, those who do not have any official language.
ऑस्ट्रेलिया और यूएसए की कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। ओके, मूविंग नेक्स्ट टू द फिफ्थ वन। Name a language other than English that does not attach gender to its object. ओके, सो इंग्लिश के अलावा एक ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो जिसको बोलते वक्त मतलब उसके जेंडर का पता नहीं लगता कि ऑफ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट इज पर्शियन। ओके, सो दैट हम इंग्लिश बोलते हैं ही इज, तो दैट मीन्स ही मीन्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट अ बॉय। इट इज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट सम एनिमल और सम नॉन लिविंग थिंग। शी इज, ओके, शी वी यूज फॉर a lady। सो देखिए, सो इंग्लिश, ओके, तो ये हमारे होके प्रोनाउंस जो हम यूज़ करते हैं। ओके, सो ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस होते, मतलब जैसे अब हिंदी की हम बात करें, मैं आपसे कह रही हूँ, तो हिंदी इटसेल्फ डिनोट्स दैट मैं कुछ कह रही हूँ, दैट रही हूँ इज़ द जो रही हूँ, जो वर्ड मैंने यूज़ किया वो बता रहा है कि मैं एक, मतलब आई एम जस्ट, मतलब एक औरत बात कर रही है, एक लेडी बात कर रही है। ओके, सो देयर आर सर्टेन लैंग्वेजेस जिसको बोलते वक्त, ओके, नाउ इंग्लिश, मैंने अभी इंग्लिश के एग्जांपल दिया आपको, तो उसमें जब हम प्रोनाउंस यूज़ करते हैं देन यू कैन टेल कि हम किसी मेल की बात करें, फीमेल की बात करें, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग की बात करें। बट स्पेशली सपोज आप कह रहे हैं कि यू सेड कि there is no chair in the house, there is no chair in the room। सो चेयर या कोई भी चीज़ जिसके बारे में बात करें, वो बता नहीं रहा दैट व्हाट जेंडर, तो जो चेयर को हम चेयर बोल रहे हैं, इट डजंट से कि मतलब चेयर इज अ, वी ट्रीट चेयर एज अ मेल और अ फीमेल किसकी तरह। लेकिन जब हम हिंदी में बोलते हैं कुर्सी, तो हम उसको एज अ फीमेल टोन में लेते हैं। ओके, सो दैट मीन्स देयर आर सर्टेन लैंग्वेजेस, ओके, इंग्लिश के अलावा एक और लैंग्वेज है जिससे कि पता नहीं चलता कि हम जिस भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स जेंडर और नॉट। ओके, सो नेम अ लैंग्वेज दैट अदर दैन इंग्लिश दैट डज नॉट अटैच जेंडर टू इट्स ऑब्जेक्ट। तो ऐसी लैंग्वेज जो कि किसी वर्ड के साथ उसके जेंडर को सिग्निफाई नहीं करती, आइडेंटिफाई नहीं करती, तो व्हाट इज दैट लैंग्वेज? दैट इज पर्शियन, दैट इज Persian। So Persian is a language that do not attach gender to its object. That is Persian. That is Persian. Persian. That is Persian. Okay, so Persian is a language. That is Persian is a language. Okay, that is being spoken। ओके, एंड दैट डज नॉट आइडेंटिफाइज द जेंडर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का जेंडर को सिग्निफाई नहीं करती है ये। दिस इज अ लैंग्वेज अदर दैन इंग्लिश। नेक्स्ट, विच लैंग्वेज डज नॉट यूज एनी पंक्चुएशन? कौन सी लैंग्वेज है जो किसी भी तरह के पंक्चुएशन यूज नहीं करती? दैट इज चाइनीज। सो चाइनीज लैंग्वेज में किसी भी तरह के पंक्चुएशन, दे डोंट यूज एनी काइंड ऑफ पंक्चुएशन इन चाइनीज। Okay, so which language does not use any punctuation? That is Chinese। Okay, that is Chinese। CHINESE। So the Chinese language does not use any kind of punctuation। तो Chinese में हम कोई भी किसी भी तरह की जो punctuation है वो use नहीं करते। Moving to the seventh one। Okay, so what are the 6 official language of the UN? Okay, सो देखिए, जो यूनाइटेड स्टेट्स हैं, ओके, सॉरी यूनाइटेड नेशंस हैं, वहाँ पे 6 ऑफिशियल, यूनाइटेड नेशंस में 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जो बोली जाती हैं। ओके, सो नाउ यू हैव टू राइट द नेम ऑफ दो 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस दैट आर बीइंग स्पोकन इन यूनाइटेड नेशंस। सो लेट्स दैट इज इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, चाइनीज, रशियन एंड अरेबिक। सो दीज आर द 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ यूएन। ओके, यूनाइटेड नेशन की 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। द फर्स्ट वन इज इंग्लिश, सेकेंड इज फ्रेंच, FRENCH, थर्ड इज स्पेनिश, SPANISH, that is Spanish। then it's Chinese, CHINESE, Chinese। next is Russian, RUSSIAN, that is Russian। and Arabic,
and Arabic. So these are the 6 official languages that are being spoken in United Nations. Okay, so these are the six official languages of the United Nations. Okay, so the first is the English, then French, then Spanish, Chinese and Russian. Okay. In which country should the noun gift be used with caution? So जो किस कंट्री में जो गिफ्ट वर्ड है जो दैट इज बीइंग यूज्ड विद अ कॉशन, ओके, उसको कॉशन के साथ क्यों यूज किया जाता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंट्री इन विच द वर्ड गिफ्ट इज बीइंग यूज्ड विद अ कॉशन? ओके, सो द वर्ड गिफ्ट इज बीइंग यूज्ड इन जर्मनी. तो जर्मनी में जो गिफ्ट वर्ड है वो कॉशन के साथ यूज किया जाता है. ओके, सो इन जर्मनी द गिफ्ट वर्ड इज बीइंग यूज्ड विद अ कॉशन. सो द रीजन why it is being used, so the reason behind it, because जो कॉशन भी यूज करने के रीजन, क्योंकि जर्मनी में जो गिफ्ट का मतलब होता है दैट मीन्स पॉइजन. ओके, द गिफ्ट वर्ड जो GIFT गिफ्ट है, इट मीन्स पॉइजन, जहर. ओके, बट इट व्हेन दे टॉक अबाउट द गिफ्ट, मतलब जो गिफ्ट, उपहार जिसको हम बोलते हैं, व्हेन दे यूज वर्ड गिफ्ट फॉर उपहार, लाइक ओके, फॉर दैट एट दैट टाइम दे यूज द वर्ड गिफ्ट विद अ कॉशन. तो कॉशन का उसको यूज करते हैं बिकॉज जर्मनी में जो गिफ्ट का मतलब है दैट इज पॉइजन. सो द वर्ड गिफ्ट इज बीइंग यूज्ड एज कॉशन इन द जर्मनी, दैट इज GERMANY, that is Germany. That is Germany. GERMANY, that is Germany. Okay, that is Germany. चलिए, now moving next to the next topic from your GK book only, that is given at page number, the page number is 82. Quizzing on Central India. So open your books at page number 82, that is Quizzing on Central India. Okay, so now I'm going to talk about the next topic, that is Quizzing on Central India. Okay, quizzing on Central India. So now I'm going to talk about that is given at page number 82. Quizzing on Central India. Quizzing on Central India. So this is the next topic that I am going to start. Okay. So the first question is, which of the following was the city in which Mumtaz Mahal died? Okay. So which of the following was the city in which Mumtaz Mahal died? तो जो मुमताज़ महल थी, the wife of Shahjahan, she died in a city. So what is the name of that city? So the name of that city is Burhanpur. Burhanpur is the name of the city where Mumtaz Mahal was died. Okay, the wife of Shahjahan, जिनकी याद में उन्होंने ताजमहल बनवाया था. So Mumtaz Mahal was died in Burhanpur. Okay, that is the answer of the first one. That is option number E as well. That is Burhanpur. BURHAN, Burhanpur. Second, which of these cities served as the capital of Avanti, one of the earliest kingdoms of Madhya Pradesh? Okay, so which of these cities served as the capital of Avanti, one of the earliest kingdom of Madhya Pradesh? That is Ujjain. Okay, तो देखिए, कांदवा, खांडवा, मगधा और मगध और उज्जैन, इन तीनों में से कौन सी सिटी है जो कि पुराने टाइम में जो अवंती की कैपिटल मानी जाती थी? सो दैट इज उज्जैन. सो उज्जैन सर्व्ड एज अ
capital of Avanti, okay, during the earlier time, okay, and this Avanti is a name of one of the kingdom tha. Avanti is the name of a kingdom that was in Madhya Pradesh during the earlier period. So the capital of Avanti at that during that earlier period was Ujjain. उस टाइम पे जो अवंती का जो कैपिटल थी दैट वाज उज्जैन. सो द आंसर ऑफ द सेकंड वन इज दैट इज सी, दैट इज उज्जैन. UJJAIN, that is Ujjain. Third one, in which year was the state of छत्तीसगढ़ formed? कौन से साल में जो छत्तीसगढ़ जो स्टेट है वो बनी थी? देखिए जो छत्तीसगढ़ एंड उत्तराखंड एंड झारखंड, सो ये 3 states थी. These are the 3 newly formed state. Though it was formed 20 years back, 20 साल पहले बनी थी, बट बाकी सारी states में से newly formed state and now it's Telangana as well. So these 3 were the newly formed state 20 years before. So किस साल में छत्तीसगढ़ है जो नई स्टेट बनी थी? इन द ईयर 2000. So छत्तीसगढ़ became the new state, okay. Chhattisgarh became the new state of in our country from in the India map in the year 2000. In the year 2000, that is option number B. That is 2000. Chhattisgarh became the new state in the year 2000. सन 2000 में. Okay. Moving next to the fourth one. Which of the following famous singers was born in the city of Indore? इन तीनों में से कौन से जो फेमस सिंगर हैं जो कि जिनका जो जन्म है इंदौर में हुआ था? लता मंगेशकर, आशा भोसले और मन्ना डे. सो दैट द आंसर इज लता मंगेशकर. सो लता मंगेशकर वॉज बॉर्न इन द सिटी दैट इज इंदौर. ओके, इंदौर में जो लता मंगेशकर का जन्म हुआ था. द आंसर ऑफ द फोर्थ वन इज ए, दैट इज लता मंगेशकर. लता मंगेशकर. Lata Mangeshkar was born in the city Indore. She is one of the greatest singer of our country. Fifth one, that is the Jabalpur area in Madhya Pradesh is famous for which rock? Okay, जो जबलपुर एरिया है मध्य प्रदेश में वो किस रॉक के लिए फेमस है? सो द जबलपुर एरिया इन मध्य प्रदेश इज फेमस फॉर मार्बल. तो जबलपुर में मार्बल है जो बहुत ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा पाया जाता है. ओके, सो द जबलपुर एरिया इन द मध्य प्रदेश इज फेमस फॉर द मार्बल. ओके, सो दैट इज आंसर ऑफ द फिफ्थ वन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मार्बल. Marble. You can commonly found marble in the Jabalpur district of Madhya Pradesh and it is famous for that only. Next one, which city of Madhya Pradesh is referred to as the Cowherd's Hill? Okay, तो मध्य प्रदेश की कौन सी सिटी है जिसको Cowherd's Hill बोला जाता है? That is ग्वालियर. So ग्वालियर is known as the city of Cowherd's Hill. Gwalior is known as the city of Cowherd's Hills. That is option number A. That is option number A, Gwalior. That is option number A, Gwalior. So Gwalior is known as the city of Cowherd's Hill. Okay, so Gwalior is known as the city of Cowherd's Hill. Now 3 questions, pictures are given and you have to write the names only. So let's write the name B part. So the answer of the first one is, okay, so what is the picture? हमारे देखिए हमें 3 पिक्चर्स दिए अलग अलग मॉन्यूमेंट्स के, हमें बताना है कि वो कौन कौन से हैं. द फर्स्ट वन इज द पिक्चर ऑफ महादेव टेम्पल, दैट इज कंदरिया. दैट इज KAN दरिया, कंदरिया Mahadev temple. That is Kandarya Mahadev temple. Okay. Second is the picture of Bhimbetka rock shelter. Second picture is the Bhimbetka, BETKA Betka rock shelter.
Shelter. Okay, the first picture is of Kandarya Mahadev temple and the third one is of Bhimbetka rock shelter. Okay, and the last one is the Sanchi Stupa. The third one is the Sanchi Stupa. Third picture is of the Sanchi Stupa. Okay, so these are the answers from page number 82. You can just note it down in your notebooks. Okay, so with this, I'm just ending the session here only, class. So I'll see you again very soon in our next session. So till then, everybody, have a good day.